Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start from plant physiology. I have made this video based upon different life science examination, whether it's your BSc examination, your MSc entrance examination, or any JRF examination. So here what I will do, I will just build up the concept, clear your basics, so that this thing will be helpful for you when you apply it on the PYQs or on the questions or even in your classrooms. Okay. So without further delay, let's start today's topic, photosynthesis, and we are only dealing with the introduction part. Okay, I'm just clearing the base right now. So photosynthesis. As we all know, the term photosynthesis is divided into two parts. Okay, one is photo and another part is synthesis. So what is photo? Photo is your light. Okay, we all know that. And what is synthesis? Synthesis is to produce. And here in case of plant, what plant will produce? It won't produce any money now. So it will produce its food and oxygen. Okay, the food is basically certain carbohydrates. Okay, which means sugar. So what is the definition here? Photosynthesis is a process by which plant uses sunlight, water, sorry, plant uses sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar. Okay. So there are lots of chemical reactions occur in this process. It's generally an endothermic process. So what is endothermic process? So the reactions in which we have to give energy from the outside. Okay. Suppose you are preparing for an exam. Okay. An external source. ओके कोई आपको बाहर से बोल रहा है कि आप ये पढ़ो, एक्स वाई जेड टॉपिक पढ़ो, एक्स वाई जेड तरीके से पढ़ो, ठीक है, तो वो कुछ बातें आपके अंदर इंसर्ट कर रहा है सो दैट आप उसी तरीके से पढ़ के आपका क्या फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हो. ओके, सो दैट मीन्स बाहर से आपको कुछ एनर्जी दी जा रही है. सो दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वेयर एनर्जी गेट रिलीज. ठीक है, जब आप पढ़ लिख जाते हो, आप कुछ कर लेते हो, तो आप दूसरों को बताते हो कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा, ऐसे ऐसे किया. सो दैट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, एंड देन anabolic reaction. What is anabolic reaction? It's simply that when in a chemical reaction something is produced. Okay, suppose you can take the example, XYZ reaction is occur and and Y product we obtain. So this is the anabolic reaction. Here in photosynthesis now we are obtaining carbohydrate. Okay, so so that's why this is a anabolic reaction. And what is redox reaction? So in chemistry you must have learned about in chemistry you must have learned about oxidation and reduction. Okay, so the combination of this reduction and oxidation combiningly we are calling it redox reaction. So what happened in your oxidation? There is a loss of electron. Okay, a molecule will lose some electron, so we call it oxidation. And when it gains some electron, we call it reduction. Okay, so both oxidation and reduction combiningly it will form redox reaction. So moving further, so there are, as I told, lots of chemical reactions occur during the photosynthesis. So there are lots of proteins, enzymes that took part. So what is the main players of this reaction? Here you can see your green plant, light, carbon dioxide and water. Combiningly, they will undergo several chemical reactions. It's not one, two, there are several chemical reactions and they will give rise to carbohydrate and your oxygen. You will be surprised if I tell oxygen is just the waste product of plant. Like plants complete those reactions, it carbohydrate form, it consume carbohydrate and it release oxygen. So technically oxygen is a waste product of plant. Okay, that we consume. So several scientists perform several experiments. Okay, that how the from where the oxygen have come. Different scientists perform different experiments. So here let's take a look who the scientists are. So first is your Priestley. You have heard about this scientist. What he did, he took two candles and two jars. Okay, first jar में उन्होंने क्या किया, बस ऐसे ही उन्होंने कैंडल लगा दिया एंड एक जार को उन्होंने कवर कर दिया. तो क्या हुआ कि कैंडल नहीं जला. पर सेकंड में उन्होंने क्या किया, कैंडल सेम सेटअप रहा उनका, पर उन्होंने बस एक प्लांट वहां पे रख दिया. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन लाया कि ये ऑक्सीजन की वजह से वो कैंडल जल रहा है. ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे डी सॉसर. तो उन्होंने क्या बोला कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इन्वॉल्व होता है जो रिएक्शन में, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही जनरेट करता है ऑक्सीजन को. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए. तो फाइनली रूबेन और कामिन, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर. तो इन्होंने ना ऑक्सीजन का एक आइसोटोप लिया O18. तो उन्होंने वो रिएक्शन परफॉर्म किया. पहले तो उन्होंने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया उन्होंने,
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसको उन्होंने O18 रखा और देन उन्होंने वाटर लिया, तो उनको लाइक नॉर्मल वाटर मिला, आइसोटोप वाला नॉर्मल ऑक्सीजन मिला, आइसोटोप वाला ऑक्सीजन नहीं मिला। तो देन फिर उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो जो ऑक्सीजन था उसको नॉर्मल लिया, और वाटर के ऑक्सीजन को, जो नॉर्मल ऑक्सीजन था उसको उन्होंने वो जो O18 वाला आइसोटोप उसको दे दिया। जब जो ऑक्सीजन निकला तो वो हमारा O18 वाला निकला। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ऑक्सीजन वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। ठीक है, फिर लेट्स मूव। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन, हमें क्या पता चला कि ऑक्सीजन आया है वाटर से। तो अभी मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाटर, हाँ वाटर को, प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? तो इट्स टू सिंपल ना कि रेन से प्लांट को वाटर मिलता है, पर वो प्लांट उस वाटर को लेता कैसे है, लाइक व्हाट्स द मैकेनिज्म, लाइक वो पाथ ही क्या है? तो प्लांट अपने रूट के थ्रू लेता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट का कोई भी पार्ट चलेगा, वो लेता है अपने रूट हेयर जोन से। ठीक है, प्लांट रूट हेयर जोन से वाटर अब्सॉर्ब करता है, जो कि उसको रेनफॉल से मिलता है। तो हमारा पहला की प्लेयर जो था वाटर, उसको हमने कंप्लीट कर दिया कि प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो अभी आते हैं लाइट की तरफ कि प्लांट को लाइट कहाँ से मिलता है। तो आप सबको पता है कि सन से प्लांट को लाइट मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ प्लांट्स ले लिए और घर पे एक लाइट लगा दिया तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, तो फिर ऐसा नहीं होता। प्लांट को लाइट मिलता है सन से। सन ही है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर प्लांट। हमारे लिए तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह सब है। ठीक है, तो एज रिटन हियर, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, एंड लाइट के पास ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और वो 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का होता है। इसको हम लाइक विजिबल वेवलेंथ भी, विजिबल लाइट भी कहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ प्लांट हम उसको बोलते हैं कि पाथ, ओके, व्हिच इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, लाइक फ्यू एल्गी जिनका 300 से 900 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो द स्टडी, ये जो लाइट है उसकी स्टडी हम किसके थ्रू करते हैं? स्पेक्ट्रम के थ्रू। So light, how light is used by plant, like which light is more used by plant? To prove that, to know that, a scientist named Engelmann, he conducted 2 experiments. Okay, in first experiment, what he did, he took 7 plants and placed them under 7 different lights. Okay, the light range is between 400 to 700 nanometer. Like he took the visible light spectrum. Okay, like your violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Okay, he took these 7 lights and placed 7 different plants. So he let them grow, and after few time, what he observed that plant which grows under red light. ठीक है, जो प्लांट हमारा रेड लाइट के अंडर ग्रो कर रहा था उसमें फोटोसिंथेसिस बाकी प्लांट्स के मुकाबले ज्यादा हो रही थी। ठीक है, तो वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा था। ये था उनका पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो उनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था? बिसाइड्स रेड लाइट ना, तो ब्लू लाइट। ठीक है, यहाँ पे ब्लू लाइट में जो प्लांट्स थे उनकी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही थी। तो ये थी उनकी दूसरी ऑब्जर्वेशन। तो उनका तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि बिसाइड्स रेड एंड ब्लू, ग्रीन लाइट में भी थोड़ी थोड़ी फोटोसिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से कि प्लांट ना रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। वो रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई है रेड लाइट में। देन उसका फोटोसिंथेसिस रेट है ब्लू लाइट में, एंड फाइनली ग्रीन लाइट में। ठीक है, ग्रीन लाइट में इन कंपैरिजन टू रेड एंड ब्लू वो थोड़ा कम फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो और एक पॉइंट आप लोग याद रखो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, तो वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ना ब्लू लाइट को। ब्लू लाइट के बाद वो रेड लाइट को करता है और फिर वो ग्रीन लाइट को करता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज्यादा है रेड लाइट में। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं या फिर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जाते हैं, हमारी वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, और एनर्जी कम होती जाती है। तो एनर्जी और वेवलेंथ ना इनवर्स रिलेशनशिप में आते हैं दोनों। जब एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ हमारा घटेगा, और जब वेवलेंथ घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा है उनका रिलेशन। तो ये बात आप याद रखिएगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ऑर्डर में होती है, पहले तो होगी रेड लाइट में, फिर ब्लू लाइट में, एंड देन ग्रीन लाइट में। बट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले होती है ब्लू लाइट में,
सबसे ज्यादा, नॉट लाइक पहले, सबसे ज्यादा होती है ब्लू लाइट में, देन रेड लाइट में एंड देन ग्रीन लाइट में, ठीक है। तो ये तो उनका था पहला एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने 7 डिफरेंट प्लांट्स लिए, उनको 7 डिफरेंट लाइट्स के अंदर ग्रो करवाया। पर क्रिटिसिज्म थे, उन्होंने कहा कि लाइक आपने तो मतलब एक ही लाइट डाला ना, तो उसमें क्या ही है, शायद आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है। तो उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेट्री डिश ली। आप इसको इमेजिन कर लो कि ये एक पेट्री डिश है, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे एल्गी जो हमारा है स्पाइरोगाइरा, उसको इवनली सारे पेट्री डिश में स्प्रेड कर दिया और उसको 7 डिफरेंट कॉलम में डिवाइड कर दिया उस पेट्री डिश को, ठीक है। हमारे ये जो लाइट है ना, उसके हिसाब से 7 डिफरेंट कॉलम में डिवाइड कर दिया। एक में रहा वायलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे रहा। तो फिर वहां पे उन्होंने बैक्टीरिया को डाला, एरोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो करेगा। तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, जब एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा तब ऑक्सीजन आएगा। तो उनको आउटकम क्या मिला ना कि रेड में, ठीक है, जहाँ पे रेड लाइट था वहां पे सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है। क्योंकि देखो उन्होंने पेट्री डिश लिया था और सारी जगह पे इवनली उन्होंने स्प्रेड किया था उस एल्गी को, तो फूड की तो कमी नहीं होगी। तो वो जो बैक्टीरिया उन्होंने डाला था उसको ग्रो करने के लिए चाहिए था ऑक्सीजन। तो उनको क्या मिला कि रेड लाइट के अंदर ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है। और क्यों ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हाँ भाई रेड लाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब रेड लाइट करता है ज्यादा फोटोसिंथेसिस। फिर उसी प्लेट में ब्लू लाइट में भी कुछ हुए थे और ग्रीन लाइट में सबसे कम हुए थे। तो यहाँ पे हमने कवर किया आपका वाटर कहाँ से आता है, आपके लाइट सोर्स, और नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता कहाँ से, तो दोनों जगह से लेता है, ठीक है। पहली जगह तो है हमारा एटमोस्फियर में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो प्लांट वहां से लेता है। और दूसरा है मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट इज योर मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है बॉडी में जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, या फिर प्लांट की बॉडी में भी तो होता है ना, तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से सेल के, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लांट उसको ले लेता है, ठीक है। ये तो गया हमारा लाइट भी गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, हमारा वाटर भी गया। और बाकी रहे ग्रीन प्लांट्स। आपको तो पता ही है ग्रीन प्लांट्स, उनका एक शूट होता है, रूट होता है, लीफ होता है, फ्रूट, फ्लावर, तो ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे ग्रीन प्लांट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाले वीडियोज है, ग्रीन प्लांट के हर एक पार्ट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, उनके स्ट्रक्चर, आपके लाइट रिएक्शन, आपके डार्क रिएक्शन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये ग्रीन प्लांट वाला हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। We have completed the introductory portion of photosynthesis. We learned about the definition of what photosynthesis is, a few experiments, and the key players. Okay, like the main characters. So the proteins and other, they are the side characters. We are going to learn this in our further videos. So let me summarize it once again. So here what happened in photosynthesis, the thermal energy is converted into the chemical energy. Okay. And what else happened? The inorganic carbon. Here in carbon dioxide, we have inorganic carbon that converted into your organic carbon in carbon dioxide. Okay, right? And thank you everyone for watching this video and listening patiently. If you like this video, then hit the like button and subscribe it. And if you have any kind of doubt and any kind of question, you can ask me in the comment section below. I will reply them all. And don't worry, I'm going to post all the video regarding to plant physiology, specifically the topics where questions come from, and we will solve it together and we will complete this plant physiology together. Okay?